Okay, very good evening to all of you. I hope I am audible. Can someone confirm to me if I am audible, loud and clear? Y- Loud yeah, and good clear. evening. Yes. Okay, thank you very much. So today it's a very interesting topic, and I, as a Amazon or a Flipkart or an online seller, I often come across this question when people come and ask me कि बेचना क्या है, ये बता दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे। तो बड़ा ही और सा क्वेश्चन होता है, हाउ टू टेल टू पीपल कि व्हाट नीड्स टू बी सोल्ड, हाउ इट कैन बी सोल्ड। सो जब मैंने कई लोगों से ऐसे बात करी तो मुझे ये लगा कि देयर शुड बी a somewhat kind of a structured approach, even though a little back of the envelope easy calculation, कि हम डीप डाइव सब में नहीं कर सकते, सारी चीज़ों में नहीं कर सकते, बट अगर हमारे को एक बार एक दिशा दिख जाती है, एक ब्रॉड तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे को इस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद हम अपने एफर्ट्स जो हैं एक पर्टिकुलर एक छोटे एरिया पे लगा सकते हैं, डीप डाइव करके देख सकते हैं कि वेदर वी आर एबल टू डू इट और नॉट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दोज थिंग्स। सो वेरी क्विकली, the agenda, of course, I'll be covering in the other weeks, but today the agenda is at a very basic level, which is a sales agenda, which is identifying a product to sell and working out the cost of sales. तो ये दो चीजें मैं आज कवर करूंगा, और आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछिए मुझसे। About us, we are Digit Design Group. We are a digital, wherein the Digit Design per se is a digital marketing agency, and we are serving over 100 plus brand owners as of now. Digicart India, we are a leading e-commerce player in the market. Slide, I have to change it. It's a bit old. We are selling over 20,000 plus units every month over Amazon, Flipkart, and our own website. Ecomically is providing support to the group on tech for warehousing, logistics, sales, and analytics. And we also have a beautiful SaaS-based product for the other e-commerce sellers on Amazon and Flipkart to for them to ease out the payment and the tax reports and the campaign reports that come from Amazon and Flipkart. We are adding more to it. And of course, True Turtle, which is a D2C brand also, and it is also affiliate and e-commerce marketplace. You can go and check out the site. So this is what Digi Design Group is all about. In this group, we have apart from me, Jatin is there, who is into data. Anurag is there in warehouse operations. Bhumika is there, who is managing the seller panel, and of course, we need a little bit of accounts also. So he's also there. So we have our 4 own managed warehouses across India, which we manage sitting right here. And we are working through Amazon and Flipkart warehouses also. And we have premium sellers with Amazon and platinum sellers with Flipkart. Okay, so I'll come straight to the point. So whenever someone comes to me and says कि हमारे को कुछ तो बेचना है, कुछ तो बता दीजिए कैसे करना है, and people then keep on asking me questions, और उनको अभी तक alphabets भी नहीं आते. It is like a kid who wishes to go to class 1 and learn the alphabets like ABCD, but they want to know exactly कि rocket science कैसे होती है. So this is why I'm saying it is a basic today's session that we are having, wherein I'll just let you know how to identify, just seeing from the portal, and little bit of help from maybe your friend, or even me, if you want to reach out to me. So I'll tell you what happened. That I happen to know one of a person who's in Japan, and seeing our success in e-commerce, he came to us. He came to us and said that he has some seller in Japan, uh, from where he can source the products, and he wanted us. Just give me a moment, please. And he had certain products. So he gave me a Japanese pamphlet. उसको मैंने गूगल स्कैन से स्कैन कर करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा, तो उसके पास जो सेलर था, ही सेड कि वहाँ पे टी पॉट था, फ्रंट एंड रियर कैमरा फॉर कार था, पोर्टेबल रिचार्जेबल सोलर एलईडी लैंटेन थी, ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर था, रिचार्जेबल लैंटेन थी, एंड स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर था.
सो ये उसके पास 6 ब्रॉड कैटेगरीज थी, ज्यादा थी इससे, बट मैं सिर्फ इन 6 पे फोकस कर रहा हूँ सो दैट इन वन स्क्रीन यू कैन सी इट ऑल। तो अब हमारे को उसने ये दे दिया, एंड बिकॉज वी हैड टू oblige him, you know, I knew him through a very very solid reference. I had to oblige him, so I said okay, we'll work it out, otherwise we don't do certain things, such things. We give people कि भाई अगर आपको करना है तो आप कीजिए, आप इसमें देखिए कि आप क्या करेंगे, कैसे सोच लगाएंगे, कैसे सोर्सिंग लेकर आएंगे, दिस इज व्हाट वी टेल देम टू डू। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चला, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई हमारे पास सोर्सिंग है और ये सब चीज की है, आप बता दीजिए कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखें। सो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। तो हमने एक टेबल बनाई, ये आप टेबल बना सकते हैं, आप इसको देख लीजिए प्लीज। वेर इन वी पुट इन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वी पुट इन द प्राइस रेंज, द ब्रांड्स, द रिलेटेड कीवर्ड्स, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। Ranking as per the brand analytics report, the range of reviews product wise, and the average number of reviews. Okay. Okay. So what happens is that name of the product उन्होंने हमारे को दे दिए। We did a very simple search. हम लोग Amazon पोर्टल पे गए और हमने वहां पे डाला टी पॉट। जब हमने वहां पे टी पॉट डाला तो हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखे, और हमने क्या नोट किया, हमने जो नोट किया प्राइस के फॉर्म में कि टी पॉट जो थे वो 400 से 1000 रुपए के बीच में बिक रहे थे, हमने वो डाल दिया वहां पे। वी ऑल्सो नोटिस्ड कि वहां पे जो नंबर ऑफ ब्रांड्स जो टी पॉट्स बेच रहे थे वो लगभग 18 20 25 के करीब थे। तो ये मेरी टीम ने वर्क किया, तो उन्होंने लिख दिया सर कि 18 to 23 काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट वी फाउंड व्हिच वर देयर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट दे रोट द रिलेटेड कीवर्ड्स, क्योंकि जब आप Amazon में या फ्लिपकार्ट पे जब सर्च करते हैं या गूगल में सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक कीवर्ड्स भी आ जाते हैं कुछ, तो जैसे टी पॉट सेरामिक, टी पॉट स्टील, टी पॉट विद इन्फ्यूजर, टी पॉट ग्लास, ये सारे जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स थे ये हम लोगों ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से निकाले, कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं टी पॉट तो क्या क्या चीज लिखी हुई आती है। देन ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट वाला पोर्शन अभी ये हम स्किप कर देते हैं, मैं बता देता हूँ ये कैसे करना है। फिर हमने देखा कि रेंज ऑफ रिव्यूज प्रोडक्ट वाइज कैसे है वो। तो अगर आप जैसे उसको स्क्रॉल करेंगे किसी भी जैसे टी पॉट लिखकर, तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने खुलेंगे। अगर आप उसको 2 3 4 5 6 पेजेस तक आगे 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 करके देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यूजुअली ये वाला जो भी प्रोडक्ट है 4 से 4.5 तक की रेटिंग्स इनको मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो मार्केट प्लेसेस होते हैं 3.5 प्लस रेटिंग जो है ओके मानते हैं। 4 प्लस पे प्रोडक्ट में थोड़ी सी गति दिख जाती है कि वो थोड़ा अच्छा सेल कर रहा होता है, बट 3.5 प्लस को भी ओके माना जाता है। बट 3.8 3.9 4 जब तक ये रेटिंग ना हो यूजुअली आप लोग इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बाय नहीं करते हैं। तो ये हमारे को देखना जरूरी है कि भाई ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो है उसके रेंज ऑफ रिव्यूज क्या चल रहे हैं। और हमने फिर एक और चीज नोट करी, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज। तो एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज हमने देखे कि किसी प्रोडक्ट पे 50 हैं, किसी पे 400 हैं, किसी पे 200 हैं, किसी पे 250 हैं, किसी पे 300 हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज पर प्रोडक्ट इज लाइक 200 to 300। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। नाउ दिस रैंकिंग ऑफ द कीवर्ड्स एज पर द ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट। So now the thing is that many people ask what kind of tool you use to find out कि क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेस है, इफ यू आर अ ब्रांड ओनर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन Amazon, और इफ योर फ्रेंड इज a brand owner and he is registered on Amazon, there have been times wherein people have come to me and said कि आप Amazon की जो ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट है आप देख रहे हैं, आप हमारे को क्या शेयर कर सकते हैं। So for analysis purposes, I do share certain parts and portions with them. उसके अंदर मैं देता हूँ उनको। तो अब जैसे जो ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट है उसके अंदर जो रैंकिंग ऑफ कीवर्ड है वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि अगर जैसे कोई टी पॉट है, टी पॉट 8997 रैंक्ड है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सर्चेज हो रही हैं Amazon पे, जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो जो भी सर्चेस कर रहे हैं उस सर्चेस
की फ्रीक्वेंसी की रैंक टी पॉट के लिए 8997 है, यानी टी पॉट इज द 8997th मोस्ट सर्च कीवर्ड। लैपटॉप यूजुअली नंबर वन रहता है, या मोबाइल फोन नंबर वन रहता है, आईफोन 13 नंबर टू या नंबर थ्री रहता है, यानी मोस्ट पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट। बट टीपॉट इज समथिंग वेयर इट्स सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक इज 8997। टीपॉट सेरामिक थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, उसकी 68,000 है। टीपॉट स्टील वो सेरामिक से थोड़ा सा बेटर है। बट अगर आप देख रहे हैं कि टीपॉट जो है 8,000 9,000 सर्च मोस्ट सर्च प्रोडक्ट से शुरू होता है, और उसकी जो वेरिएशन है कीवर्ड की 45,000 68,000 1 लाख 16,000 लाइक दैट ऐसे जाती है। तो जब ये हमारे पास ये चारों पांचों चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्राइस रेंज है, ब्रांड्स कितने हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, रैंकिंग क्या है, रेंज क्या है, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है, इट हेल्प्स अस काइंड ऑफ गेस्टिमेट कि भाई मेरे को ये करना है या नहीं करना है। ये बिल्कुल एक ब्रॉड लेवल पे हो रहा है, फिर मैं आगे बताऊंगा कि हम इसमें और डीप कैसे जाते हैं। तो जैसे टी पॉट अगर आप देखेंगे 400 से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, करीब 20 ब्रांड है उसके अंदर, और एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज सिर्फ 200 या 300 है, मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चलता। विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट कि जो रैंकिंग ऑफ द कीवर्ड है जो ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट में आ रही है वो 9,000 या काफी लेट आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा 9,000 खराब है, 9,000 इतनी अच्छी भी नहीं है, बट जो बाकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा नीचे हैं, विच इज लाइक 68,000 45,000 एंड लाइक्स। इस प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे भी, एक एक छोटी अमाउंट का प्रोडक्ट है, छोटी अमाउंट का प्रोडक्ट का जब मार्केटिंग करेंगे उसमें शुरू में थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा, 20 ब्रांड्स के साथ compete कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज कम है, रेंज ऑफ रिव्यूज जो है प्रोडक्ट वाइज वो अच्छे हैं, बट ओवरऑल सर्चेस कम है। तो टीपॉट इज समथिंग विच आई विल नॉट डू ऑन दी मार्केट प्लेस, एटलीस्ट लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ हियर? Any question anybody has, then I'll move forward. Okay. सो फ्रंट एंड रियर कैमरा ऑफ द कार, जैसे हमने देखा प्राइस रेंज 3,500 से 12,000, ब्रांड 7 to 12, और जो बाकी एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स जो इसके साथ दिखते हैं उनकी रैंक जो है 21,000 एंड लाइक्स है। एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज 600 to 700, रेंज ऑफ रिव्यूज प्रोडक्ट वाइज जो है दैट इज 3.8 to 4.2। इट्स काइंड ऑफ अ ओके प्रोडक्ट, आई विल नॉट बी कीन टू डू इट। ब्रांड्स कम है इसके अंदर, बट क्योंकि प्राइस रेंज ज्यादा है तो कस्टमर थोड़ा कम खरीदता है। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि जितना प्राइसिंग आपका कम होगा, द प्रोपेंसिटी टू बाय और ट्राई इट आउट विल बी मोर। तो कोई टी पॉट फिर भी खरीद लेगा, बट द प्रोपेंसिटी टू बाय ₹5,000 एवरेज प्रोडक्ट वुड बी अ लिटिल लोअर, और उसको ज्यादा लोग सर्च भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे को दिख रहा है कि इसका जो पहला कीवर्ड है 21,000 सर्च फ्रीक्वेंसी में रैंक पर है। क्योंकि ब्रांड्स कम है तो एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज जो है 600-700 के करीब है, विच इज लाइक डबल देन व्हाट वी सी इन द टी पॉट। बट दिस अगेन, इफ आई वर a seller who's trying to search for the products to sell, I will not sell it. Okay. Then comes the portable rechargeable solar LED lantern. इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसको मैंने देखा है कि आप प्रोडक्ट 5 के साथ इसको मिक्स करके देखिए। When we see product 5, it is a rechargeable lantern जिसकी price range, I am at product 5 right now where you can see my cursor, 400 to 700। brands only सिर्फ 5 6 7 brands हैं, ज़्यादा brands नहीं है। और इसके जो related keywords हैं, टॉर्च लाइट्स, rechargeable emergency lights like that, and look at the search frequency rank। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये 1 नहीं है, टॉप 100 में नहीं है, टॉप 1000 में नहीं है, but 1990 is not bad, 2656 is not bad, 2920 is not bad, 3254 is not bad। एनीथिंग अंडर 10,000 इट इज नॉट सो बैड कि आप उसको डंप कर दें। मतलब 1,000 से 10,000, 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 इतनी बुरी रैंक नहीं है, बिकॉज द ट्रैफिक इज जस्ट टू हैवी ऑन ऑन Amazon एंड पीपल आर सर्चिंग फॉर सो मेनी थिंग्स। सो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अगर ठीक है मेरा लैपटॉप जितना सर्चेज नहीं है, बट हो सकता है इतना सर्चेज हो कि 5-7 ब्रांड्स को अपना पेट भरने का अच्छे से मौका मिल जाए। नाउ I'll सी व्हाट हैपेंस। रेंज ऑफ रिव्यूज जो है 3.7 to 4.3 है। इसका मतलब है कि जो 5-7 ब्रांड्स हैं
अगर वो हम थोड़ा सा उसमें क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आए तो हम लोग 4.1 4.2 टाइप की रेटिंग का अगर हम कोई प्रोडक्ट ले आए जो हमें पता है क्वालिटी अच्छी है, तो वी कैन मेक अ मार्क मच अर्लियर एंड फास्टर, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। और एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट, एवरेज नंबर इज अराउंड 8,000 9,000 10,000, किसी केस में 15,000 भी हैं, 20,000 भी हैं। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं आगे इसका एक रिवर्स कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम रिवर्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये प्रोडक्ट में दम है। ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर बिल्कुल भी दम नहीं है। फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, स्ट्रेट अवे जो इसका रैंकिंग ऑफ कीवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, डेफिनेटली नॉट डूएबल। The sixth product, which is a small portable speaker, that again is a very good product to do. अगर आप देखेंगे इसकी जो कीवर्ड की रैंकिंग्स हैं, एज एन इट इज द 59th मोस्ट सर्च प्रोडक्ट, और 188 और 560, which means the people are really searching for these kind of keywords, which are like the small portable speaker or the Bluetooth speakers or the speakers Bluetooth wireless, like that people are searching. 15 to 20 brands are there. Range of reviews product wise is around 3.9 to 4.4, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी हमारे को मिल रहा है ऑलरेडी। and the average number of reviews is anything ranging from 2,000 3,000 to 50,000. Average would be like 15 20,000. So this is a very good, again, a product. If you are able to source it very well, you can or you should kind of look at this product. Any question till now? Then I'll come as to how to actually calculate की sale कितना होता है panel पे. Any question till now? Yeah, hi. I wanted to ask, don't we look at BSR ranking also in this Okay, what is the BSR ranking? bestseller rank? Okay, the seller ranking, why would you want to look at? I thought I had an understanding that it will give you an idea of, how that product is doing in that category. See, when I'll complete this, this 1 2 3 4 5 6, you will realize that even अगर आपके competition में कोई अच्छा brand है, तो it is not a problem. मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अब जैसे टी पॉट है, टी पॉट की मेरे को मार्केट बनानी पड़ेगी, मार्केट वहां पे बनी नहीं हुई है, पीपल डोंट गो देयर टू बाय अ टी पॉट, बट इफ पीपल गो देयर टू बाय अ स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर और अ रिचार्जेबल लालटेन, इट इज बेटर टू compete. आई वुड रादर compete इन लालटेन, क्योंकि जब वहां पे 5 7 ब्रांड है, इवन दो वहां पे बड़ा ब्रांड है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे मार्केट बनी हुई है, लोग उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्राइसिंग एंड गिविंग लिटिल बिट ऑफ क्वालिटी with the right approach that I'll cover in later weeks. We can actually make the product do good. तो मेरे को डरना नहीं चाहिए कि भाई ये वाला जो जो है ये रिटेल इजी बेच रहा है या कोई और बहुत बड़ा सेलर बेच रहा है, कौन बेच रहा है इसको. अगर मैं अपने ब्रांड का प्रोडक्ट ला रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अगर आप सपोज कोई पैनासोनिक की कोई चीज ला रहे हैं जहाँ पे 100 सेलर 500 सेलर और बेच रहे हैं, तो उस चीज को मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप अपना ब्रांड चाहते हैं, उसको प्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें प्लेस करना चाहिए. जैसे फिफ्थ जो ये लाइन आइटम है, ये बहुत अच्छी लाइन आइटम है, क्योंकि इसमें ब्रांड्स भी कम है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक्स भी बेटर है, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज पर प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड. सो इफ यू आर एबल टू सोर्स इट गुड, maintain a good quality, focus on the customer, you can beat good brands also. Okay, So shall I move ahead? you look at BSR. uh, you are saying bestseller rank? Yeah, bestseller rank. Okay. To have this selection criteria only to select products. नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज मैं ना अभी प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट कैटेगरी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ. मतलब अगर मैं रिचार्जेबल लैंटेन अगर आप किसी की बोलेंगे, सपोज आई डोंट नो दी ब्रांड, अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बोलेंगे तो वो हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर है, सपोज दैट इज द नंबर 1, बट आई एम टॉकिंग इन कैटेगरी एज जनरल. क्योंकि देखिए, आप बिना बेस्ट सेलर हुए भी बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं. बेस्ट सेलर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. जैसे हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन इट वाज एट नंबर 2 और नंबर 3, और जैसे ही हम बेस्ट सेलर रैंक हमारी उसमें नंबर 1 हुई, हमारी 20% सेल बढ़ गई. तो ऐसा नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग खा कमा नहीं सकते. दे कैन ऑल्सो डू बिजनेस. But bestseller ranking, it's also given like a broad category also, like health and nutrition के category में, like protein powder का like that idea also you get, no, like how is protein powder
doing well in health and nutrition अगर category. अगर आप ये कीवर्ड्स फ्रॉम ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट पकड़ लोगे ना, तो उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। Okay, okay. या बिकॉज अगर कोई प्रोटीन पाउडर ये सर्च कर रहा है, वो हेल्थ कैटेगरी नहीं सर्च करेगा या हेल्थ प्रोडक्ट्स नहीं सर्च करेगा, वो प्रोटीन पाउडर ही सर्च करते हुए आएगा। अगर हेल्थ कैटेगरी में प्रोटीन पाउडर नंबर 1 पर है, तो आप ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट में पाएंगे कि प्रोटीन पाउडर की जो कीवर्ड रैंकिंग है ना, वो हाई होगी। अगर Okay. हेल्थ कैटेगरी में प्रोटीन पाउडर एज अ प्रोडक्ट बहुत नीचे है, तो वो अगर आप वो पाएंगे आपकी कीवर्ड्स ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट में जो कीवर्ड रैंकिंग है उसकी, वो भी बहुत नीचे होगी। Okay. तो इट विल गेट कवर्ड अप इन दैट। Right, right, right. I ओके, understand. सो नाउ यू नो हाउ टू सी कि सेल कैसी हो रही है और कितनी हो रही है। आप पहले तो देख लीजिए कि कितने ब्रांड्स बेच रहे हैं उसको, ये हमने देख लिया है। नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन एन एवरेज एंड रैंकिंग ऑफ रिलेटेड कीवर्ड्स, ये मैंने आप सबको समझा दिया है कि 1 2 3 कैसे देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लगभग लगभग सेल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी हो रही है, किसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कितनी हो रही है। आप पहले 3 4 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, जितने भी पेजेस हैं मोटे मोटे, आप उस, जैसे आपने टी पॉट डाला या आपने ये रिचार्जेबल लैंडेन डाला, आप पहले 6 5 6 7 पेज आप सर्च कर लीजिए। उसमें जितने भी आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, आप उनके नंबर ऑफ रिव्यूज को एक मोटा मोटा टोटल मान लीजिए और उसको 25 या 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एनी एनी नंबर दैट यू फील कंफर्टेबल, 25 to 40, इट इज नॉट अ बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं है, हम सिर्फ सरोगेट नंबर्स की तलाश कर रहे हैं। तो सपोज अगर हम बात करते हैं दैट एक मैंने प्रोडक्ट पकड़ा जिसके अंदर ये रिचार्जेबल लैंटेन थी, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 10,000 एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज का प्रोडक्ट है। तो रफली अगर मैंने पहले 5 पेज में मैंने देखा कि 5 लाख रैंकिंग्स आई हुई हैं, 5 लाख रेटिंग्स आई हुई हैं, लोगों ने 5 लाख रेटिंग्स दे रखी हैं। तो अगर 5 लाख को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल क्लियरली नो कि 2 करोड़ के करीब जो है ये माल बिका हुआ है। तो एनीथिंग फ्रॉम 1.25 करोड़ टू 2 करोड़ यूनिट्स इसकी बिकी हुई है। ओके, अगर 5 लाख रेटिंग्स हैं तो पीपल वुड हैव सोल्ड एनीथिंग फ्रॉम 1.2 करोड़ टू 2 करोड़ यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ये चीज है कि अगर हम 1.2 करोड़ या 2 करोड़ यूनिट्स कह रहे हैं बिके हुए हैं, यू कुड से कि भाई ये 2 साल में बिके हैं या 3 साल में बिके हैं। एक नंबर ले लीजिए आप एस्टिमेट के हिसाब से अपने, इसमें कोई वो नहीं है। अगर थोड़ी सी नई न्यूअर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, आप उसको 2 साल ले सकते हैं कि भाई ये 2 करोड़ यूनिट 2 साल में बिकी होंगी, या ये 2 करोड़ यूनिट है ये शायद 5 साल में बिकी होंगी। तो एनी विच वेज यू गेट समथिंग लाइक अ 50 लाख काइंड ऑफ अ नंबर पर ईयर, कि 50 लाख यूनिट्स की सेल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, 50 लाख यूनिट्स पर ईयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेल यू आर सेइंग दैट दिस कैटेगरी हैज। आप इसमें बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले लीजिए और बहुत अग्रेसिव एस्टिमेट भी ले लीजिए, और कहीं बीच का नंबर एक पकड़ लीजिए आप। सपोज वो बीच का नंबर आता है कि कैटेगरी जो है 50 लाख यूनिट बेच रही है साल का, ये पर्टिकुलर से सपोज अ स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर, और सॉरी रिचार्जेबल लैंटेन जो है, सपोज वो 50 लाख यूनिट बेच रही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेच रही होगी, 1 करोड़ के ऊपर का नंबर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं कहता हूँ 50 लाख हम उसको मान के चलते हैं फिर भी। आप ये टारगेट कर लीजिए कि 50 लाख में से 6 महीने के बाद, 50 लाख का मतलब हो गया 4 लाख यूनिट्स की एक मंथली रन रेट। ठीक है, मैं ये कहता हूं आप ज्यादा का एस्टिमेट ना लगाएं, आप कह दें कि भाई आप 1% पकड़ोगे इसका नंबर या 3% पकड़ोगे 6 महीने के बाद, 6 महीने की मेहनत के बाद। दिस इज द काइंड ऑफ नंबर दैट यू कैन लुक इनटू इफ द मार्केट इज एस्टैब्लिश्ड, मार्केट में लोग खरीदने आते हैं, आपके प्रोडक्ट में जो आप प्रोडक्ट उतारोगे उसकी क्वालिटी में दम है, प्राइसिंग ठीक है, सोर्सिंग आपकी अच्छी है, एंड यू हैव प्लेड द अदर कार्ड्स राइट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली मीटिंग्स में। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन क्लियरली टारगेट एनीथिंग फ्रॉम 1% टू 3%। तो अगर मैं 50 लाख की बात कर रहा हूँ यानी 4 लाख यूनिट्स महीना, तो आप एनी वेयर 4,000 6,000 7,000 यूनिट्स मंथली की सेल देख सकते हैं फ्रॉम 6th और 7th मंथ ऑनवर्ड्स। if you play the cards right, you can do that. Yes, we have done it, and we have successfully launched egg boilers and fans, and we have seen egg boilers में तो हमने और बेटर नंबर देखे थे। फैंस के अंदर द नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने वो टाइप के नंबर्स देखे हैं विद इन 6 months ऑफ लॉन्चिंग। ओके,
अनदर थिंग इज दैट कौन से प्राइस ब्रैकेट में आप लॉन्च करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जितना हाई प्राइस ब्रैकेट होगा आपका सेल थोड़ी टेपर ऑफ कर जाएगी। आप बीच में रखना चाहते हैं या सबसे शुरू में रखना चाहते हैं, किस टाइप के आप प्राइस उसके अंदर यू नो यू वांट टू कीप इट। प्राइस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग गैस स्टोव बेचते हैं, तो उसके अंदर जो है 1500 टू 2000 का एक प्राइस ब्रैकेट है, 2000 से 2500 का है, 2500 से 3000 का है, 3000 से 3500 का है, 3500 है नबब का है। तो ये 500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट्स हैं। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की ये कहती है कि आपकी जो भी कोई ब्रांड इक्विटी है, आप ज्यादा से ज्यादा जो है दो प्राइस बकेट्स में अपने ब्रांड को रख सकते हैं। कि आप 2000 से 3000 में खेल रहे हैं या 2500 से 3500 में खेल रहे हैं, उसके नीचे भी रखेंगे और उसके ऊपर भी रखेंगे, तो लोग आपकी ब्रांड इक्विटी समझ नहीं पाएंगे कि भाई आपका ब्रांड जो है वो कहना क्या चाहता है, वो डिनोट क्या करता है। वो अफोर्डेबल ब्रांड की कैटेगरी में आता है कि ठीक है भाई मैं अफोर्डेबल ले लेता हूँ, चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ। या आप बिल्कुल उसको हाई एंड में रखते हैं। अगर हाई एंड में रखते हैं तो लोगों को वो टाइप की सर्विस वगैरह भी चाहिए, कि भाई आपने बढ़िया से कॉल सेंटर बिठा रखा कि नहीं बिठा रखा, अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है आपका। तो इफ यू आर अक्रॉस ऑल दी थिंग्स, उसमें क्या होता है आपका फोकस लूज हो जाएगा एंड पीपल विल नॉट गेट टू नो कि व्हाट डज दिस ब्रांड स्टैंड फॉर। तो आपको कौन से रेंज में खेलना है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कि आफ्टर यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई मैं स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर करना चाहता हूँ या रिचार्जेबल लालटेन हम एग्जांपल ले रहे हैं वो करना चाहता हूँ, जो 400 से 800 रुपए में बिकती है, तो आप 400 से 500 में खेलोगे या 500 से 600 में खेलोगे या 600 प्लस में खेलोगे। सो दिस यू हैव टू डिसाइड अप फ्रंट। एंड देन ऑफ कोर्स यू आर टारगेटिंग द मार्केट कि भाई मैं 1% ले रहा हूँ, 4000 या 5000 यूनिट्स महीने की करूंगा 6 महीने के बाद, या मैं 7-8 हजार यूनिट्स 6 महीने के बाद कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी मच अचीवेबल अगर उस प्रोडक्ट का आपने एक टेंटेटिव जो सेल्स का नंबर है वो आपने 50 लाख यूनिट्स साल का निकाल लिया है तो। एनी क्वेश्चन इन दैट, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, सो आई मूव अहेड। So now that we have got the costing right, sorry, the product identified, अब हम ना उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग वर्कआउट कर सकते हैं। सो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। या सो वंस वी हैव फाइनलाइज्ड कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हम कौन से टाइप का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कौन सी प्राइस रेंज का बेचना चाहते हैं, प्राइस रेंज के हिसाब से आपका स्पेक्स डिसाइड हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। सी देर इज अ प्रोडक्ट ए जिसका लिस्टिंग प्राइस जो है से सपोज 999, 1099 या 1199 है। तो मतलब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी आपने 1000 रुपए के रेंज में निकाले हैं, 1000 से 1200 की रेंज में, एंड दीज आर दी लिस्टिंग प्राइस। सो द कमीशंस इफ आई टेक एट 6.5%, और इसका जो टैक्स है 18% है। तो मैंने कमीशन कितनी लगेगी, फिक्स्ड फी कितनी लग रही है, वेट हैंडलिंग कितना लग रहा है, उसके हिसाब से मैंने ये निकाल दिया है कि ऑन दिस सेल्स पे which I'm doing without tax this much amount, the total expenses are these: commission plus fixed fee plus weight handling. But there are other more cost also, कि भाई जैसे आप प्रोसेसिंग और स्टोरेज कॉस्ट अपने एंड पे वो ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले रहे हैं पर यूनिट, टेक कॉस्ट ले रहे हैं, और अदर्स भी ले रहे हैं, जैसे हमने 1% पकड़ा हुआ है फॉर एनी श्रिंकेजेस एक्सेट्रा। तो जब मैं ये कॉस्ट टोटल के एक्सपेंस में ऐड कर देता हूँ, तो सपोज मेरे पास आपका ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस विच इज लाइक दीज मैनी विच आई हैव रिटन हियर। देन देयर इज अ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एल, वो मैंने लिख दिया। तो ग्रॉस रियलाइजेशन पोस्ट मार्केट प्लेस फीस अगर हम देखें, विच आई एम सेइंग इज दैट 846 माइनस 167 इज इक्वल टू 88 रुपीज। बट नेट रियलाइजेशन बिकॉज मेरे लोकल खर्चे भी कुछ हैं 42 रुपए के, तो वो 46 रुपीज रह जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि ऑन सेल्स आई एम हैविंग अ मार्जिन of 9% when I just take the marketplace fees out, and a margin of about 4.7% when I take the net realization that I am getting. So in the three products, I have seen or I have tried to calculate कि मेरा percentage of sales के हिसाब से कितना आ रहा है. और अगर मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो मेरी जो नेट प्रॉफिट है 1000 यूनिट्स पर मंथ की, सपोज मैंने अगर कोई एक रेट पकड़ा हुआ है विच इज लेस और मोर दैट यू हैव टू डिसाइड, उसके हिसाब से दिस इज द काइंड ऑफ रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन दैट आई एम गेटिंग. सो दिस नेट रियलाइजेशन हेल्प्स अ लॉट बिकॉज इसके बेसिस पे आप रिवर्स प्लानिंग करके you can plan your advertising budgets, और you can plan out आपको कितना स्टोरेज वगैरह रखना है, कितना माल भेजना है, एफबीए में करना है, अपने वेयर हाउस से करना है. सो ऑल दिस यू कैन डू इट बिकॉज पीपल ऑफन आस्क मी कि भाई हम लोग कितना ऐड करें इसमें, कितना स्पेंड करें. तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखिए 6 महीना तो आप इसको पहले तो ये मान के चलिए कि ये इन्वेस्टमेंट है जो आप स्पेंड कर रहे हैं. पर कहते हैं कितना करें, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप कितना बेचोगे. तो बोलते हैं कि कितना बिक सकता है. तो देन आई गिव देम दिस दिस शीट विच आई शोड टू यू कि भाई अगर आप ये सारी कैलकुलेशन करके आप 1% टारगेट करते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू सेल 4000 यूनिट्स अ मंथ, तो 4000 यूनिट्स में अगर आपके पास छठे महीने से आप 4000 यूनिट्स बेच रहे हो तो कुड बी अराउंड 1.2 लाख टू 1.5 लाख कुड बी योर नेट रियलाइजेशन. पर उससे पहले वहां तक ले जाने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी. तो अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई मेरे को कंसिस्टेंट जो है एक 1.25 लाख रुपए आ रहा है, और कंसिस्टेंट 1.25 लाख रुपए पे हम लोग कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे होंगे, और उस 1.25 लाख को बनाने के लिए मैं पहले 6 महीने में कितना स्पेंड करूंगा, जिसमें शुरू में तो इन्वेस्टमेंट की तरीके से जाएगा, इट विल बी लाइक जस्ट अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट बिकॉज इतनी सेल नहीं होगी, बट वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होगी. So that you have to reverse calculate. I can only give you the tools. Any question in that, in this? Just to clarify again, this Yeah. table doesn't include any ads or any marketing cost, right? See, I have not included that for a reason because I would not like to consider the ad or the marketing cost only as a revenue spend. अगर आप इसके अंदर देखेंगे ये पर यूनिट जो है ना सिर्फ एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कि मुझे ये पता है कि भाई ये मेरी नेट रियलाइजेशन है, इतना तो खर्चा होगा ही होगा मेरा. आप एड्स पे 1 लाख रुपए डालो, 2 लाख रुपए डालो, या 50,000 रुपए डालो, और अगर आप उसको ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो या आप उसको बहुत हद से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो पर यूनिट कॉस्ट दैट यू आर स्पेंडिंग कैन डिफर. ओके, सो इट इज नॉट राइट, क्योंकि शुरू में जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारे पास ए कॉस्ट जो है 90% का आता है. तो 6 महीने पहले जब हमने पंखे लॉन्च करे तो हमारा ए कॉस्ट जो फर्स्ट मंथ का था वो 90% प्लस था. आज की डेट में वो 13.5% है. उस टाइम पे हमारी ऑर्गेनिक सेल जो थी वो 0 थी. आज की डेट में ऑर्गेनिक सेल जो है 60% है. एंड दिस नंबर वी वांट कि ये 60% से बढ़ के 70% पे हो, और वो जो ए कॉस्ट का नंबर जो 13.5 पे चल रहा है वो जो है अब जाकर 10% के नीचे आए. सो दिस इज व्हाट आई कॉल ग्रोथ. Right, you are understanding my point. So Yeah. I really cannot put a number unit wise of marketing spend when I'm making this table. Sandeep ji, I'm not able to hear you. Your voice is coming very feeble. I'm really sorry, I can't hear you at all. You can maybe write your query in the chat box. Okay, do we have any other question? This tech expense, this is as per Amazon, like whatever the marketplace expense, or this is additional you've added here? मैम मार्केट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं? Tech Edge. टेक एच मैम ये हमारे एंड पर है. Okay. Okay. मतलब you can think of it as any other expense that you may like to replace it. But I just gave you an idea, and these are like very very trustable figures जो मैंने इसके अंदर डाली है.
they are like very closely related to the products that we sell. Okay. Okay, any other query we have? Okay, if we don't have any other query, so I'll just terminate the session now for today. And I again thank you all for being here. And in case any of you have any queries, you can ping us on my team. The way we have reached out to you, you can also reach out back to us. Thank you very much for attending today. Thanks again. Yeah, cost sheet I'll share. My team will share. Sagar ji. Thank you, Varun.